Welcome to all of you student in our second part of the chapter number 7, weather, climate and adaptation of animals to climate. As you know that in our previous chapter we have already discussed about the weather, climate, its definition and the difference between the both and the adaptation. In the last part of our chapter we have learned about the definition of the adaptation. But student, I am repeating. The definition of adaptation is features. This is the feature and the habits that helps animal to survive their surroundings. Now students, in your books there is given the adaptation about the two regions. One is polar region and second one is tropical rainfall regions. First is polar region and second is tropical rainforest regions. So student, in this second part we will discuss about the both regions and few animals which have the adaptations to survive in that regions. Now student, let's come to know about the first region, which is polar regions. Student, these regions are included in the Canada, Greenland, Iceland, Norway, Sweden, Alaska, and so many regions are included in such kind of regions which is known as the polar regions. Student, in this region 6 months sun does not set rise and another 6 months it does not set. Okay, so you can imagine that how is it it is very difficult to survive in such kind of region. So many adaptations should be there for the animals or the creatures to survive in that kind of regions. Student, we cannot imagine to survive in that regions because we are living in the climate which is quite warmer. So student, in that regions temperature can below than the minus 37 degrees centigrade. Minus 7 degrees centigrade. Can you imagine the temperature till minus 37 degrees centigrade? In these regions the temperature can be low of this particular temperatures. Now, so this regions is called the extreme climate. Polar regions have the extreme climates, student. Now student, in the polar region we will discuss about the two animals which has the well adapted characteristics features to survive this extreme climatic conditions. Now both animals are, first one is polar bear which we have to discuss about, and the second animal is the penguin. So student, let's come to talk about the polar bears. Polar bears are easily survive in the polar regions. Student, polar bear have the following adaptation to survive in that extreme climatic conditions. Polar bear. So we will discuss each with the interesting diagram so that it will be easy for all of you to learn and understand. Now student, the polar bear have the very first character we will take about the white fur. They have white fur, student. White fur is found in the polar bear's body. And what is the function of the white fur? To adapt the extreme climatic condition, it protects from the predators. Student, you know that the area of the polar region is totally covered with the snow. And what is the color of snow? Exactly, the color of the snow is white. So white fur will help them to hide from their predators. So it's give them the chance to protect from predators. And now student, one more important and the good thing is that they can hide themselves from the predators
and they can easily catch their prey because their prey will not identify them to hiding in that climatic condition. स्टूडेंट जो उनके जो शिकार होते हैं जिन्हें कि वो खाते हैं, है ना, तो वो ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि पोलर बियर यहाँ पर हाइड हो सकता है, यहाँ पर छुपा हो सकता है। तो इससे इन्हें दो फायदे होते हैं। पहला फायदा तो ये होता है कि ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने शिकारी से, मतलब जो इन्हें खाते हैं, प्रीडेटर्स, यानी कि जो इन्हें अपने भोजन के रूप में यूज करते हैं, उनसे वो बच सकते हैं। और दूसरा, वो इस तरह से बचे होकर के, इस तरह से हाइड होकर के, इस तरह से छुप करके अपने प्रे को वो क्या कर सकते हैं, इजीली जो है वो ईट कर सकते हैं, वो इजीली उनका शिकार कर सकते हैं। सो व्हाइट फर इज वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। और इस जो व्हाइट फर होता है, इससे हमने देख लिया कि इन्हें दो फायदे होते हैं। नेक्स्ट जो इनका एडॉप्टेशन होता है वो स्टूडेंट होता है स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। दे हैव स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। सो स्टूडेंट, what is the benefit of that kind of adaptation? They can catch their prey very easily, क्योंकि इनमें स्मेलिंग की क्षमता होती है, तो कैच देयर प्रे, ये अपने प्रे को या अपने शिकार को बहुत इजीली वो कैच कर लेते, क्योंकि उन्हें उनकी स्मेल आ जाती। दे कैन इजीली आइडेंटिफाई दैट इट मस्ट बी प्रे देयर। वो भी उनसे छुपे होते हैं, है ना। हर एक एनिमल की ये टेंडेंसी होती है, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है सर्वाइव करने के लिए, कि वो अपने आप को बचा कर रखना चाहते हैं, प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं। तो बिकॉज ऑफ द सेंस, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल्स, दे कैन इजीली कैच देयर प्रे। नाउ स्टूडेंट, द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर दे हैव, एंड दैट इज लॉन्ग एंड कर्व्ड शेप्ड क्लॉव्स। उनका जो है वो लॉन्ग एंड कर्व्ड, मुड़े हुए, लंबे और मुड़े हुए, लॉन्ग एंड कर्व्ड शेप्ड जो है उनमें क्लॉव्स पाया जाता है। क्लॉव्स यानी कि उनके जो पंजे होते हैं वो कैसे होते हैं स्टूडेंट, वो होते हैं लॉन्ग भी होते हैं और वो कर्व्ड होते हैं। आपने डिस्कवरी चैनल्स में देखा होगा, और नहीं तो आप देखिए उसको कि वो किस तरह से ग्रिप करके बहुत इजीली चल सकता है। तो ये जो है इनके वॉकिंग में हेल्प करते हैं, वो हेल्प टू वॉक ऑन आइस। तो इससे ये क्या कर सकते हैं, हेल्प टू वॉक ऑन आइस। आइस के ऊपर स्टूडेंट वी आर नॉट एबल टू वॉक ऑन आइस वेरी इजीली, पर इन्हें तो अपनी लाइफ का पूरा पार्ट जो होता है वो आइस के ऊपर ही वॉकिंग करने में चलता है। तो अगर उन्हें इस तरह का एडॉप्टेशन नहीं पाया जाएगा तो इट विल वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू वॉक इजीली। तो इनमें जो लॉन्ग एंड कर्व शेप्ड क्लॉव्स होते हैं वो उन्हें आइस के ऊपर इजीली वॉक करने के लिए होते हैं, जो कि उन्हें बहुत अच्छे से वॉकिंग करने में सहायता करते हैं। नेक्स्ट एडॉप्टेशन इनमें स्टूडेंट पाया जाता है टू थिकर लेयर ऑफ फर्स। उनमें टू थिकर लेयर्स ऑफ थिकर लेयर ऑफ फर्स पाए जाते हैं। उनकी बॉडी में जो फर्स होते हैं वो डबल होते हैं, डबल मोटे, टू थिकर लेयर ऑफ फर्स होते हैं, जो कि उन्हें क्या करने में मदद करता है, कीप देम वार्म, उन्हें गर्म रखने में मदद करता है। स्टूडेंट, अगर ये इनकी बॉडी में गर्माहट नहीं रहेगी तो क्या होगा कि ड्यू टू द आइस देयर ब्लड कैन बी फ्रीज्ड, उनके ब्लड भी फ्रीज हो सकता है और वो उनकी डेथ हो सकती है। तो ये डबल कोटेड, जैसे कि आपको पता है कि बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो आप लोग रजाई का यूज़ करते हैं, या यू यूज़ टू ब्लैंकेट, है ना, टू कीप योर सेल्फ वार्म, और यू यूज़ टू वियर वार्मर क्लॉथ्स, है ना, वुलन क्लॉथ्स को आप लोग यूज़ करते हैं, इस तरह के फर के बने हुए क्लॉथ्स को यूज़ करते हैं। तो वो क्या करता है, इट विल हेल्प यू टू कीप वार्म इन दैट काइंड ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस। तो ये जो डबल थिकर लेयर ऑफ फर्स होते हैं वो इन्हें गर्म रखने में मदद करते हैं। एंड अनदर एडॉप्टेशन स्टूडेंट, इनकी बॉडी में जो होता है वो लेयर ऑफ फैट्स पाई जाती है। लेयर ऑफ फैट्स इज प्रेजेंट इन देयर बॉडी एंड व्हाट इज द फंक्शन, ये इंसुलेट करने का काम करती हैं, इंसुलेट देयर बॉडी। उनकी बॉडी में जो टेम्परेचर रहता है, जो गर्माहट रहती है स्टूडेंट, आपको पता है, यू हैव ऑलरेडी नोन अबाउट दिस टर्म इंसुलेटर इन आवर हीट चैप्टर नंबर 4, उसमें मैंने आपको समझाया था इंसुलेटर। तो वो क्या करते हैं कि इनकी जो हीट होती है बॉडी की उसे बाहर निकलने नहीं देती, इंसुलेशन का काम करती है। तो इंसुलेट बॉडी फ्रॉम कोल्ड एंड कीप वार्म, इंसुलेट देयर बॉडी
and keep them warm. So student, these are the characteristics feature, or we can say the adaptation found in the polar bear to survive them easily in such एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस. आपको पहले बता चुके हैं कि यहाँ पर जो है -37 डिग्री सेंटीग्रेड तक का तापमान पाया जाता है. तो उस क्लाइमेटिक कंडीशन में भी है ना, वो जो पोलर बियर होता है उन्हें सर्वाइव करने के लिए बहुत इजीली हो जाता है. तो दीज आर द एडाप्टेशन फाउंड इन द पोलर बियर. इट वर द adaptation found in the polar bear. Now come to the next animal, which is your favorite animal, and this is also very favorite for me also. And the next animal is penguins. आपने ज़रूर डिस्कवरी चैनल्स में पेंगुइन्स को देखा होगा, एंड दिस इज़ वेरी क्यूट एनिमल. एंड लेट्स सी व्हाट काइंड ऑफ एडाप्टेशंस फाउंड इन देम टू सर्वाइव इन दैट एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन. सबसे फर्स्ट तो यही होता है कि उन्हें भी जो होती है थिकर स्किन पाई जाती है. थिकर स्किन तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, फंडामेंटल है, और वो इन्हें क्या करेंगी, कीप देम वार्म. अगर थिकर स्किन नहीं होगी तो दे विल नॉट सर्वाइव इन दैट पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन. नेक्स्ट जो होता है स्टूडेंट, वो होता है इनके एक गुड स्विमर होने के लिए. पेंगुइन जो होते हैं वो बहुत अच्छे तैराक होते हैं, गुड स्विमर्स होते हैं, और उनमें बहुत सारे उन्हें प्रे मिलते हैं, शिकार मिलते हैं, जिन्हें उनका वैसे भी फेवरेट जो डिश होती है वो फिश होती है. और आपको पता है कि फिश जो है एक्वेटिक एनिमल है, तो वो पानी में पाई जाएगी. तो इनमें जो है एडॉप्टेशन तैराक के रूप में, एक अच्छे स्विमर के रूप में पाई जाती है. सबसे पहला तो इनमें ये पाई जाती है कि इनकी जो बॉडी होती है वो स्ट्रीमलाइंड होती है. स्ट्रीमलाइंड body, they have streamlined body to swim easily and very perfectly. क्योंकि उन्हें स्विमिंग करते करते अपने प्रे को भी कैच करना होता है. तो जिस तरह से फिश की बॉडी होती है, लाइक द फिश, दे हैव द स्ट्रीम्ड बॉडी टू स्विम वेरी इजीली. नेक्स्ट होता है इनमें वही स्विमिंग के रिगार्डिंग कि दे हैव द वेब्ड फीट. उनमें वेब्ड फीट पाया जाता है. तो वेब्ड फीट भी जो होता है वो स्विमिंग करने के लिए बहुत इजीली होता है, इजी टू स्विम, वेब्ड फीट. एंड नेक्स्ट वन, आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी आप पेंगुइन को देखते हैं तो आप सिंगल पेंगुइन, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सी सिंगल पेंगुइन, बट दे फाउंड इन द हडल्ड टुगेदर. ये आपस में हडल्ड पाए जाते हैं. हडल्ड मतलब कि झुंड में पाए जाते हैं. और वो क्यों पाए जाते हैं बेटा, वो हडल्ट क्यों होते हैं, आपस में झुंड में या एक ग्रुप में क्यों पाए जाते हैं, इसलिए टू कीप देमसेल्व्स वार्म, टू कीप देमसेल्व्स वार्म. तो इसीलिए ये जो है आपको हमेशा ही ग्रुप में दिखाई देंगे, हडल्ट कंडीशन में पाए जाते हैं, एक दूसरे को वो वार्मनेस देने के लिए, अपने आप को जो है कोल्डनेस से बचाने के लिए. तो ये स्टूडेंट पेंगुइन में पाया जाने वाला एडॉप्टेशन है, जो कि उन्हें इस तरह के क्लाइमेटिक कंडीशन में, यानी कि पोलर रीजन्स में, हम किसके बारे में पढ़ रहे थे, हम यहाँ पर पढ़ रहे थे पोलर रीजन्स में पाए जाने वाले एडॉप्टेशंस के बारे में. और पोलर रीजन के एडॉप्टेशन के अंतर्गत हमने दो एनिमल्स देख लिए. सबसे पहला हमने पोलर बियर देखा, एंड नेक्स्ट वन हमने पेंगुइन के बारे में देख लिया. नाउ स्टूडेंट, अब आप लोगों को एक चीज़ और बताते हैं. आपने साइबेरियन क्रेन के बारे में ज़रूर सुना होगा, साइबेरियन क्रेन. और अगर नहीं सुना होगा तो हम अभी पढ़ लेते हैं कि साइबेरियन क्रेन क्या होती है. साइबेरियन क्रेन, जैसा कि नाम से ही है कि ये कहाँ से आती है, ये साइबेरिया में पाई जाती है. लेकिन क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो इंडिया है वो एक कौन सी कंट्री है, वार्म कंट्री है, मतलब कि यहाँ पर गर्माहट होती है. तो बहुत सारे एनिमल माइग्रेशन के द्वारा हमारे इंडिया में आते हैं सर्वाइव करने के लिए कुछ समय के लिए. तो ये जो साइबेरियन क्रेन होती है स्टूडेंट, वो जो है वो साइबेरिया से आती है. और साइबेरिया से हमारे इंडिया में ये दो जगह पर आती हैं. पहला तो भरतपुर इन राजस्थान, भरतपुर में भी आते हैं ये, जो कि राजस्थान में सिचुएटेड है ना.
सारी साइबेरियन बर्ड्स यहाँ पर आती हैं, और सुल्तानपुर में भी आती हैं। सुल्तानपुर जो है वो कहाँ पर है, कौन से स्टेट में है बेटा, वो है हरियाणा में। तो ये हरियाणा में प्रेजेंट जो सुल्तानपुर है वहाँ पर ये साइबेरियन बर्ड्स आती हैं, क्योंकि उनके लिए फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन वहाँ पर नहीं होता है, तो वो हमारे इंडिया में इन 2 जगह पर आती हैं साइबेरियन क्रेन्स सर्वाइव करने के लिए। सो स्टूडेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू, एंड दिस इज also enhance your general knowledge that Siberian cranes come from the Siberia to survive in our country to prevent themselves from the extreme climatic condition in their regions like Siberia. So student, we have discussed about the adaptation found in the animals which survive in the polar regions. नेक्स्ट हमारा रीजन जो हमारी बुक में दिया हुआ है, हमारे कोर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, वो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रीजन। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि कौन कौन सी कंट्रीज या पार्ट्स होते हैं वर्ल्ड के जो कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रीजन में आते हैं। सबसे पहले तो हमारी कंट्री इंडिया वो इसमें आती है, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, केन्या, इस तरह की बहुत सारी कंट्रीज जो हैं वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रीजन के अंतर्गत इंक्लूडेड होती हैं। वेस्टर्न घाट ऑफ आसाम, हमारे आसाम का जो वेस्टर्न घाट है बेटा, वहाँ पर ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रीजन में पाए जाते हैं। कहाँ पर, वेस्टर्न घाट ऑफ आसाम, वेस्टर्न घाट ऑफ आसाम। एंड स्टूडेंट, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नो यू दैट जो आसाम का ये जो रीजन्स होते हैं, यहाँ पर जो है डे और नाइट जो होते हैं वो इक्वल लेंथ के होते हैं, है ना। यहाँ पर डे एंड नाइट जो होते हैं वो इक्वल लेंथ के पाए जाते हैं। डे एंड नाइट बोथ आर इक्वल मीन्स 12 आवर्स के होंगे। तो ये यहाँ पर जो वार्मनेस होती है, गर्माहट होती है बेटा, वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पाया जाता है। इसके जस्ट अपोजिट हमने अभी अभी पोलर रीजन्स के बारे में पढ़ा कि वहाँ पर जो है बिलो देन -37 डिग्री सेंटीग्रेड तक के एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन पाई जाती है। और यहाँ पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रीजन में हमने देखा यहाँ पर क्या टेम्परेचर की रेंज होती है, 15 डिग्री सेंटीग्रेड टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक की पाई जाती है। और हमने इसमें इंक्लूडेड वर्ल्ड के पार्ट्स भी देख लिया और हमारे इंडिया में कहाँ कहाँ पर पाई जाती है ये भी हमने देख लिया। तो यहाँ पर स्टूडेंट प्लेंटी ऑफ रेन्स होगा, बहुत ज़्यादा मात्रा में रेन फॉलिंग होगी, क्योंकि जैसा कि यहाँ पर हमने देखा कि फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट, तो जहाँ पर ज़्यादा फॉरेस्ट होगा वहाँ पर, जहाँ जंगल ज़्यादा होंगे वहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होगी। तो ऑब्वियसली आपने देखा होगा कि अभी भी रेनी सीजन चल रहा है, तो रेनी सीजन में आपको आसपास हरियाली दिखती है, घास, पेड़ पौधे, है ना, हर्ब श्रब्स बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है वो ग्रो कर जाते हैं। और आपने अपने घरों में भी जो है अलग अलग प्रकार के छोटे छोटे पौधे नर्सरी से लाकर लगाए होंगे या किसी नेबर के यहाँ से लगाए होंगे, तो वो इजीली सर्वाइव करने लग जाते हैं। तो यहाँ पर जो एनिमल्स पाए जाते हैं, बहुत प्लेंटी ऑफ एनिमल्स एंड प्लेंटी ऑफ वेजिटेशंस, मतलब प्रचुर मात्रा में एनिमल्स भी पाए जाते हैं और वनस्पति भी पाई जाती है। तो यहाँ पर दिखाई देते हैं रेड आइड फ्रॉग, फ्रॉग होते हैं जिनकी आंखें रेड कलर की होती हैं, इसीलिए इसे हम रेड आइड फ्रॉग कहते हैं। गोरिल्ला, गोरिल्ला पाए जाएंगे यहाँ पर, एप्स पाए जाएंगे बहुत अधिक मात्रा में, मंकी, मंकीज, टाइगर, लेपर्ड, है ना, लेपर्ड्स भी पाए जाएंगे यहाँ पर, एलिफेंट्स, लिजर्ड्स, स्नैक्स, एलिफेंट से लिजर्ड्स, स्नेक्स, है ना, स्नेक्स के साथ साथ में फिर यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में बर्ड्स भी पाए जाएंगे और फिर इंसेक्ट्स भी पाए जाते हैं। सो यू कैन सी दैट देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ द एनिमल्स। वैसे ही वेजिटेशन यानी कि पेड़ पौधों की बहुत सारी वेराइटीज यहाँ पर पाई जाती हैं, मतलब फूड के लिए यहाँ पर कोई कमी नहीं होती, इसलिए यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में प्लेंटी ऑफ बर्ड्स, प्लेंटी ऑफ एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स वर फाउंड इन दैट रीजन्स। यहाँ पर जो है एक टॉकुन बर्ड्स भी पाया जाता है स्टूडेंट, आपकी बुक में ये कोर्स में है, टॉकुन बर्ड्स पाया जाता है, बहुत ही क्यूट सा बर्ड्स होता है ये टॉकुन बर्ड्स। और ये इसमें क्या पाया जाता है, इसमें लार्ज एंड लॉन्ग बीक्स पाए जाते हैं। ये भी एक इनका एडॉप्टेशन है टॉकुन बर्ड्स का, जो कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रीजन में पाया जाता है। इनमें कैसे बीक्स पाए जाते हैं, कैसे चोंच पाई जाती है इनकी, तो इनकी लार्ज, बहुत बड़ी मात्रा, बहुत बड़ी रहती है,
लार्ज एंड लॉन्ग बीक पाई जाती है, लार्ज एंड लॉन्ग बीक पाई जाती है, जिससे कि वो फूड को बहुत इजीली ग्रिप कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं और उसे अच्छे से खा सकते हैं। और ये जो फ्रूट्स और ब्रांचेस में बहुत अच्छे से इनकी पहुंच बन जाती है, जो कि इनके लिए एक एडॉप्टेशन पाया जाता है सर्वाइव करने के लिए। नाउ स्टूडेंट आपने आपके दिमाग में ये क्वेश्चंस बहुत जल्दी रेस करना चाहिए कि जब यहाँ पर इतने प्लेंटी ऑफ एनिमल्स पाए जाते हैं तो दे विल, है ना, ये एक दूसरे के लिए बहुत ही परेशानी भी साबित कर सकते हैं, जैसे कि टाइगर है, लेपर्ड्स हैं, है ना, तो इनसे किन्हें खतरा होगा, मंकी को खतरा होगा इनसे, है ना, और दूसरे बर्ड्स को भी इनसे क्या होगा कि बहुत ही डेंजरस हो सकते हैं, क्योंकि ये उन्हें फूड की तरह से खा सकते हैं। तो जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रीजन में पाए जाने वाले जितने भी एनिमल्स होते हैं, है ना, दे इन दिस एरिया दे हैव सेंसिटिव हियरिंग एंड शार्प आई साइट्स और थिक स्किन। इनकी जो होती है वो सेंसिटिव हियरिंग होती है, बहुत ज्यादा ये आसानी से दूर की आवाज को भी बहुत अच्छे से सुन सकते हैं, तो सेंसिटिव हियरिंग होती है इनकी जो है वो थिक स्किन्स भी होती हैं, और जो है इनकी आई साइट होती है ये भी शार्प होती है। स्टूडेंट, दीज ऑल द adaptation found in the animals which survive in the tropical rainforest regions or they found in the tropical rainforest region। तो सेंसिटिव हियरिंग क्या होगी, सेंसिटिव हियरिंग जो होगी ये इनके जो प्रेडिसेसर जो प्रेडेटर्स होते हैं, जो इन्हें शिकार करने वाले एनिमल्स होते हैं, उनसे इन्हें क्या करती हैं, बचने में सहायता करेंगे, वहां से भाग जाएंगे, उनके जैसे ही हियरिंग उनको सुनाई देगी, उनकी आवाज सुनाई देगी, उसी तरह से उनकी थिक स्किन भी क्या करेगी, उन्हें जो पेड़ पौधे वनस्पति या जो कांटे होते हैं उन्हें उनसे उनकी स्किन को डैमेज होने से बचाएगी। और इनकी आईसाइट शार्प होने से भी क्या फायदा होगा कि ये अपने प्रेडेटर्स को दूर से ही आता हुआ देख लेंगे और फिर वहां से रन अवे कर जाएंगे या कहीं पर भी हाइड कर जाएंगे, जिससे कि उनके जो प्रेडेटर्स है वो उन्हें नहीं देख सकते हैं। तो और स्टूडेंट एक और इम्पॉर्टेंट चीज है वो होता है चेंज स्किन कलर। इनका आपने देखा होगा कि जो लिजर्ड्स होते हैं, लिजर्ड्स में से थोड़ा कम, लेकिन कैमेलियंस जो होते हैं, गिरगिट जो होते हैं, इस प्रकार की जो एनिमल्स होते हैं, इनमें क्या होता है कि स्किन के कलर को ये चेंज कर सकते हैं, मतलब जो उनका सराउंडिंग होता है उस सराउंडिंग के अकॉर्डिंग दे विल चेंज देयर स्किन टू हाइड देमसेल्व्स फ्रॉम देयर टू देयर सराउंडिंग और टू मिक्स देम फ्रॉम टू देयर सराउंडिंग्स। उससे भी इन्हें दो बेनिफिट्स होगा। पहला तो ये बेनिफिट होगा स्टूडेंट कि ये प्रेडेटर से बच जाएंगे, और दूसरा ये बहुत ही इजीली अपने प्रे को कैच कर सकते हैं। आपने देखा होगा कैमेलियन कितने अच्छे से अपने प्रे को कैच कर सकती है, क्योंकि वहां पर इंसेक्ट बैठा हुआ उसे तो मालूम ही नहीं है, अगर वो ग्रीन कलर के ग्रास में है या ग्रीन कलर की कोई लीफ में है तो उसका कलर किस में चेंज हो जाएगा, कैमेलियन का ग्रीन में ऑब्वियसली हो जाएगा टर्न। तो इंसेक्ट विल नॉट आइडेंटिफाई दैट देयर प्रेडेटर्स इज सिटिंग देयर, तो वो इजीली उसे क्या कर लेगा कि कैच कर लेगा और वो ईट कर लेगा, अपना पेट भर लेगा। तो एनिमल्स को सरवाइव करने के लिए इन सारे एडॉप्टेशंस को समय समय पर इस्तेमाल करना पड़ता है, यूज करना पड़ता है वहां पर बहुत अच्छी तरह से सरवाइव करने के लिए। सो द नेक्स्ट एनिमल ऑफ आर इज एलिफेंट। Elephant is also very favorite animal for the all children and elders also. So elephant में कौन कौन सी वो एडॉप्टेशंस पाए जाते हैं जो कि इन्हें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में इजीली सरवाइव करने के लिए होता है। तो इसमें सबसे पहला तो होता है इनका पाए जाने वाली इनकी ट्रंक। ये जो ट्रंक होती है दे यूज इट एज अ नोज, ये नाक की तरह, नोज की तरह इसको इस्तेमाल करते हैं। ट्रंक होती है इनकी लंबी, वही तो एक इंटरेस्टिंग फीचर होता है बच्चों के जो है एक तरह से एक्साइटिंग होने के लिए एलिफेंट को देखने के लिए। तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट, इनमें स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल पाया जाता है, और स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, तो ये स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल जो है आपको मैंने अभी तुरंत एक दो मिनट पहले ही बताया था कि स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है। तो इससे दो फायदे होते हैं, प्रेडेटर्स से बचना और दूसरा अपने प्रे के लिए। तो इन्हें पता चल जाता है कि अरे यहाँ पर तो बहुत इंटरेस्टिंग सा प्लांट लगा हुआ है और हम उसकी जो है ब्रांचेस को आराम से मैं ईट कर सकता हूँ, अपने पेट को भर सकता हूँ।
तो ये जो ट्रंक होता है इतना लंबा, वो एज अ नोज यूज होता है और वो स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल देता है। और ये एक और से फायदा होता है कि दे कैन पिक देयर फूड, ये अपने फूड को क्या कर सकते हैं, आसानी से उठा सकते हैं, अपने मुंह तक ले जा सकते हैं। तो ये इजीली इट विल हेल्प देम टू पिक देयर फूड्स। अब दूसरा होता है इनमें टस्क। टस्क पाया जाता है, आपने देखा होगा व्हाइट कलर का टीथ इनमें पाया जाता है, बड़े वो होते हैं टस्क। ये टस्क क्या होते हैं स्टूडेंट, ये होते हैं मॉडिफाइड टीथ। मॉडिफाइड टीथ होते हैं इनके। और ये टस्क जो होता है, ये मॉडिफाइड टीथ होते हैं, ये इन्हें किस चीज में हेल्प करते हैं, ये जो बार्क होते हैं, जो प्लांट्स की जो मोटी मोटी छाल होती है उसे फाड़ने में, यानी कि टीयर ऑफ बार्क, टीयरिंग ऑफ बार्क। बार्क जो होते हैं, जो मोटी मोटी जो छाल होती है पेड़ की, है ना, तो उसे जो है टीयर करने में, इसे फाड़ने में आसानी होती है उन्हें, और तभी वो उसे अच्छे से खा सकते हैं। अब इनमें जो एक फीचर होता है, आपने देखा होगा कि इनकी लार्ज ईयर पाई जाती है, इनमें कान बहुत बड़े पाए जाते हैं। एंड इन योर क्लास 5th इन ईवीएस यू वर रीड अबाउट द ईयर्स, व्हाट इज द यूज ऑफ द ईयर। ये जो है वो फैन की तरह यूज करते हैं इसे, क्योंकि इन्हें बहुत ज्यादा गर्मी लगेगी, तो ये क्या करते हैं, इसे फैन की तरह यूज करते हैं, यूज लाइक फैन। एक तो ये फैन की तरह यूज कर सकते हैं, और दूसरा जो होती है हियरिंग ऑफ सॉफ्ट वॉइस, हियरिंग ऑफ सॉफ्ट वॉइस। अगर कहीं दूर से भी कोई एकदम सॉफ्ट सी भी वॉइस आती है, तो भी वो उसे सुनने के लिए बहुत ही जो है फायदेमंद होता है। तो इनके जो लार्ज ईयर्स होती हैं, दे कैन यूज इट लाइक अ फैन एंड दे कैन हियर द सॉफ्ट वॉइस फ्रॉम वेरी फार। So students, these are the topics which we have to cover in this chapter. Chapter number 7, weather, climate and adaptations of the animals to climate. तो जो क्लाइमेटिक कंडीशन में एनिमल्स को एडॉप्टेशन के लिए जो जो फीचर्स थी, उसमें हमने दोनों रीजन्स के बारे में बहुत अच्छी तरह से पढ़ लिया, पोलर रीजन्स के बारे में एंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रीजन्स के बारे में। और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रीजन्स में हमने बहुत सारे एनिमल्स देखे, उनमें हमने देखा कि किस तरह के क्लाइमेटिक कंडीशंस थी, और टॉकन बर्ड्स के बारे में पढ़ा, और हमने एलिफेंट्स के बारे में पढ़ा। एंड दे all topics are very important for your exam purposes and you have to learn it very carefully. So student, this is the whole chapter. Thank you and have a nice day.